Sentence is basically a combination of words or aggregation of words that are in a proper sequence and that gives a complete thought. For example, I repeat again the same example. I eat the food, or I write a letter. I write a letter. तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? Both examples are examples of sentences. Both gives the proper meaning and the words are in proper sequence. I eat the food. अगर हम देखेंगे जो sentence है, it is made of group of words, but sentence can be bifurcated into so many parts like I. यहाँ पे I जो है, I मैं हूँ. I am the performer of the action. मैं खाना खा रही हूँ. ठीक है? I here is subject. Eat here is action word. Or we can say you have verb. ठीक है? The food. The food here is object. It is object. Object is which is the receiver of the action in the sentence. जिस पे काम हो रहा है वो ही है. क्या है? Object. समझ आया? Same is in case of I write a letter here. I is subject. Doer of the action. Write is verb. Action word. A letter is object. Receiver of the action. This is sentence. It gives proper meaning and it is proper sequence. अगर इन वर्ड्स को हम प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे, इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे उस टाइम पे. ठीक है? उर्दू में सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? जुमला. गुड. I write a letter, ये भी सेंटेंस है. I eat the food, ये भी सेंटेंस है. और सेंटेंस जो है ये या तो नोट ऑफ इंटरोगेशन से एंड होता है और इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, या ये एंड होता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से, जो कि आपको मैं पढ़ाते टाइम हर जगह बोलती हूँ कि हियर इट इज नोट ऑफ इंटरोगेशन, यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है. ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस वी हैव रिटन. ठीक है? जिस हिसाब से हम सेंटेंस को लिखते हैं उसी हिसाब से उनके पीछे जो है मार्क लगता है, चाहे फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क हो. समझ आया? नाउ गोइंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मींस कि कितने किस्म के सेंटेंसेस है. समझ आया? तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में there are 4 types of sentences. How many types are there of sentences? 4 types of sentences. Exactly. 4 types of sentences. First is assertive sentences. Assertive sentences. Assertive sentence is that sentence which gives a statement. जो कुछ बयान कर रहा हूँ. ठीक है? Which gives a statement, which tells us something. ठीक है? जो कुछ बोल रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, उसको हम बोलते हैं assertive type of sentences. Assertive sentence is also known as declarative sentence. It is also known as declarative sentence. जो कुछ बयान कर रहा है. Why declarative? Because it declares something. It tells about something. ठीक है? That is declarative sentence or assertive sentence. I will cite a simple example. For example, the sun is shining. The sun is shining. सूरज चमक रहा है. ठीक है? The sun is shining. It is assertive or declarative sentences because ये क्या दे रहा है? Statement. बयान कर रहा है कुछ. Again, the earth is round. मैंने क्या कहा? The earth is round. ठीक है? I went to the market. I went to the Market. It is also what type of sentence? It is assertive type of sentence. It is also known as declarative type of sentence. Are you getting me? Yes, ma'am. I went to market. आपने देखा हर जगह मैंने किससे एंड किया सेंटेंस को? फुल स्टॉप. That means declarative or assertive sentence always ends with a full stop. समझ आया? And it starts with a capital letter. ये हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप से. So this is declarative or assertive type of sentence. Now second type of sentence.
Now, second type of sentence. Interrogative sentences. Interrogative Sentence. Interrogative sentences. Interrogative sentences are those sentences that ask something. जिसमें सवाल पूछा जाए, ठीक है। मैं आपसे कोई भी सवाल पूछूंगी, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आपके बुक में से क्वेश्चन पूछूंगी, वो भी क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क समथिंग। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछूंगी, वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू Live. आप कहाँ पे रहते हो? मैंने आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा, ठीक है। नेक्स्ट, What do you eat? आपने क्या खाया? ये भी क्या है? Interrogative question. What is your name? What is your name? This is also a type of interrogative sentence. I repeat, interrogative sentence is that sentence which asks something. जो कुछ पूछ रहा है हमसे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दैट्स इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इट ऑलवेज एंड्स विद नोट ऑफ इंटरोगेशन, जिसको आप उर्दू में सवालिया का निशान भी बोलते हो शायद, ठीक है। तो इंटरोगेशन जो है, नोट ऑफ इंटरोगेशन से क्लोज होता है, आप इससे पहचान सकते हो जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, दैट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। Imperative sentence. Imperative sentences. Imperative sentences. Third type of sentences are imperative type of sentences. Imperative sentence is that sentence in which there is a request. क्या है उसमें? Request. या तो request होगी, शाबाश, order होगा, Command. command. Good. This type of sentence is known as imperative sentence. Imperative sentence always end, ये भी हमेशा लगभग end होता है किससे? Full stop से end होता है। Imperative sentences या तो इसमें request होगा, किसी से दरखास्त करेंगे हम, order होगा when someone gives you order, ठीक है। Command, कोई command दे रहा है, जैसे कि in case of soldiers वहाँ पे ज्यादा देते हैं कमांड वगैरह, या जब आप असेंबली पे होते हो वहाँ पे कमांड होती है, ठीक है। तो ये जो है, it comes under imperative sentence. जिस सेंटेंस में भी ये तीन चीजें होती है, that is called imperative sentence. For example, I will cite a simple example. For example, please bring me a glass of water. A glass of water. इसमें मैं क्या कर रही हूँ? दरखास्त कर रही हूँ। I request you, ठीक है। Please bring me a glass of water. Please bring me this book, ठीक है। तो ये क्या हो गया? या please close the door, please open the window. ये जो भी एग्जाम्पल इसमें दे रही हूँ, यह क्या है? इसमें रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, डांटती नहीं हूँ इस टाइम, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज, ठीक है। तो दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज ऑर्डर। क्लोज द डोर। क्लोज द, यहाँ पे मैं आपको क्या कर रही हूँ? कीप क्वाइट। मैं क्या बोल रही हूँ आपको? चुप रहो। ये भी क्या है? ऑर्डर दे रही हूँ मैं। समझ आ रहा है बेटा? Yes. नेक्स्ट इज कमांड, और वी कैन से जिसमें हम किसी को क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? Instructions. आपको मैं बोलूंगी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। फॉलो द डायरेक्शंस ऑन द मैप। ये क्या दे रही हूँ मैं आपको? इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। समझ आया? इज इट क्लियर? तो imperative sentence is that sentence which contains request, order, command or instructions. जहाँ पे भी आप सेंटेंस में ये चीजें देखोगे, आप बोलोगे कि मैम दिस इज इंपरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस, दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। समझ आई बात? तो इंपरेटिव सेंटेंस में या तो रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, आप किसी से दरखास्त कर रहे हो, प्लीज, ठीक है, गिव मी योर पेन, ठीक है, ऐसे ऑर्डर दे रहे हो किसी को, क्लोज द डोर, डोंट शाउट, कीप क्वाइट, ठीक है, जैसे मैं आपको करती हूँ ऐसे। तो कमांड और इंस्ट्रक्शंस, उसमें क्या होता है? मैं आपको बोलूंगी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो आई एम गिविंग यू द कमांड दैट यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। समझ आ रहा है? ये बात समझ आ रही है? तो मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ,
कीप क्वाइट, ये है ऑर्डर। समझ आ रही है बात? इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर में फर्क समझ आ रही है? इंस्ट्रक्शंस हो गया, मैं आपको क्या दे रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, these are imperative type of sentences. This was third type of sentence. Now going towards the last one and the fourth type of sentence, that is exclamatory sentence. ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये हर जगह इंग्लिश ग्रामर में मिलता है। नंबर 4 टाइप इज exclamatory sentence. Exclamatory sentences. Exclamatory sentences, as the name suggests, as the name depicts, it ends with note of exclamation. Wherever you see that very sign, that is note of exclamation. उल्टा आई, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं इसको ऐसे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इट इज क्या है, ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। आपने देखा होगा, मैंने आपको इंग्लिश में बहुत सारे लेसन्स पढ़ाए, चाहे मैंने आपको फेयर प्ले पढ़ाया या इससे पहले भी बहुत सारे पढ़ाए, वो कौन सा पढ़ा था, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो हमें बहुत सारे प्रोज में कंसंट्रेशन करनी पड़ी इन चीजों से, इस साइंस से। वहां पे मैं आपको बोल रही थी कि दिस इज नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, और जहां पे भी आपको ये दिखेगा दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ आया? एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज दैट सेंटेंस दैट एंड्स विद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। बट ये क्या शो कर रहा है, क्या डिपेक्ट, क्या डिनोट करता है? इट रिप्रेजेंट्स जॉय, ठीक है, सैडनेस, इमोशनल फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स। जो भी सेंटेंस ये चीजें शो कर रहा है दैट इज एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। जज्बात, सडन फीलिंग्स पे जाहिर हो रहे हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल, आई विल साइट एन सिंपल एग्जांपल, यू हैव गॉन फॉर अ मूवी, ठीक है, आप कहाँ पे गए हो, मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, कहीं पे वॉच कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है, लास्ट में हीरो मार जाता है, ठीक है। तो यू विल से अलास the hero died, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, the hero died, ठीक है। यहाँ पे last note of interrogation, that means you are showing certain feelings, feelings of sadness, आप खुद भी दुखी हो रहे हो, ठीक है, you are feeling very sad because the hero died in the climax or in the end, ठीक है। समझ आया? तो एंड में मर गया, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट द हीरो डाइड। जब आपको पीटी मैम ले जाते हैं क्रिकेट मैच खेलने कहीं पे, आप हमेशा जीत के आते हो, हमेशा वहां से आप वहीं से शाउटिंग करके आते हो गेट से, तो वहां पे आप यूज करते हो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। तो वहां पे आप क्या बोल रहे हो, यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर फुल ऑफ जॉय, यू आर शोइंग योर हैप्पीनेस। तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, हमेशा हुर्रा, और भी कुछ बोलते हो आप उसके साथ, वो मुझे याद नहीं है, आई हैव वन द मैच। समझ आया बेटा? तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हो, यू आर शोइंग, आप क्या दिखा रहे हो वहाँ पे, ग्रेट जॉय, अपनी हैप्पीनेस को जाहिर कर रहे हो, इजहार कर रहे हो। तो जहाँ पे भी इस चीज का इजहार होता है वहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर? समझ आया? एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब मैं नॉटशेल में रिपीट कर रही हूँ। Sentence is group of words or sequence of words that gives a complete thought, that is in proper sequence. If the words are written in improper sequence, that does not mean it is a sentence. समझ आया? उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। इसी I eat the food को मैं एक स्क्रैम्बल फॉर्म में बोलूंगी, the food I eat, ये कोई भी सेंस दे रहा है? नहीं। समझ आई बात? तो this is sentence. Now types of sentence. There are 4 types of sentence. First type of sentence is assertive sentence. Assertive sentence is also known as declarative sentence because it gives a statement जो हमें कुछ बता रहा है। The sun is shining, rain is falling outside, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, तो ये क्या है, assertive sentence और declarative sentence. Next one, second one is interrogative sentence. Interrogative sentence is that sentence that ends with note of interrogation. इसमें होता है, तो ये सवाल पूछ रहे हैं, which asks you something. मैं आपको बोलूँगी what do you eat, where are you going, ठीक है, what are you doing here. तो ये क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे, सवाल पूछ रही हूँ। समझ आया? And third type is imperative sentence. Imperative sentence is that sentence in which there is request, order or command, instructions, ठीक है। First of all, I will cite a simple example like please bring me a glass of water, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई। नाउ आई विल ऑर्डर यू, कीप क्वाइट, ये क्या मैं कर रही हूँ आपको, ऑर्डर कर रही हूँ, ठीक है। डोंट गो देयर, ये क्या कर रही हूँ मैं, ऑर्डर दे रही हूँ। एंड थर्ड टाइप इज इंस्ट्रक्शंस, प्लीज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, प्लीज ओबे योर एल्डर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपको
सॉरी डोंट प्लीज नहीं यूज कर सकते हम ओबे द ट्रैफिक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ओबे योर एल्डर्स ये मैं क्या कर रही हूँ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ समझ आया and last type is exclamatory sentence it always ends with note of exclamation and exclamatory sentence is that sentence that shows joy sadness emotional feelings alas the hero died you are watching a movie and the जो hero है he died in the climax or in the end वहाँ पे आप क्या बोल रहे हो आप दुखी हो जाते हो ना उस टाइम you are showing the feelings of sadness here you are sad तो वहाँ पे क्या बोलोगे आप लास्ट द हीरो डाइड नाउ यू हैव वन द मैच उस टाइम पे आप हूटिंग करके आ रहे हो वहाँ पे आप क्या बोल रहे हो हुर्रा आई हैव वन द मैच तो these are exclamatory sentences clear हुए all types of sentence any question no ma'am that's all for today thank you